Assalamu alaikum students. How are you? Hoping that you are fine. Today I am teaching you mathematics of class 6 chapter number 2 and 3. In chapter number 2 the natural and whole numbers are there. Exercise 2a question number 1, fill in the blanks to make the statements true. The smallest natural number is 1. The answer is 1. Blanks are there, so answer is also written there. Part 2, the smallest whole number is 0. The smallest even number of 3 digit is 100. The greatest odd number of 2 digit is 99. The greatest 4 digit number is 99999999. The smallest 3 digit odd number is 101. Question number 2, the answer the following question. Part 1, is every natural number is a whole number? Yes. All natural number जो है वो whole number में मौजूद है. The answer is yes. Now part 2, is every whole number a natural number? If not, then name it. Answer is no. All whole numbers are natural numbers except the number 0. Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and natural numbers are 1, 2, 3, 4 and so on. So it is clear that 0 is not the natural number, but 0 is a whole number. Now we can say all natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural numbers. Part 3, which whole number succeeds 9999? To find the successor of the number, add 1 to given number. Thus 9999 plus 1 is equal to 10,000. Which whole number precedes 1000? To find the successor of a number, subtract 1 to the given number. Thus 1000 minus 1 is equal to 999. Exercise 2b. Question number 1, fill in the blanks. Part 1, 512 plus 205 is equal to dash plus 512. The answer is 205. Part 2, 5430 plus 0 is equal to 5430. Part 3, 54 plus bracket 36 plus 40 is equal to 54 plus in bracket there is 36 bracket close plus 40. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ है. उसमें ये होता है कि 3 डिजिट्स होते हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स की शिफ्टिंग होती है. तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट एक में स्टार्टिंग में ब्रैकेट जो है वो बाद में आई है, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट में है. तो 36 इज आंसर. Question number 2, state whether the following are true or false. The sum of two even numbers even, true. The sum of two odd numbers is odd, false. The sum of one even and one odd number or whole number is even, it is also false. Question number 3, find the difference between the large odd number of 3 digit and the smallest even number of 3 digit. Largest odd number 3 digit is 999. Smallest even number of 3 digit is 100. The difference is 999 minus 100 is equal to 899. Question 4. State whether the following are true or false. 8 minus bracket 4 minus 2 is equal to 8 minus 4 minus 2. It is false. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरी वैल्यू में से जब माइनस करेंगे तो उन दोनों का इक्वेशन में दोनों का आंसर सेम आना चाहिए स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पर दोनों का आंसर डिफरेंस है, सो इट इज़ फॉल्स. नंबर 2, 10 minus 6 minus 4 is equal to bracket 10 minus 6 bracket close minus 4. It is also false because the answer is not same. 10 minus bracket 6 minus 4 is equal to 10 minus 6 plus 4. द आंसर इज 2. यानी इस वैल्यू सेम वैल्यू से सिर्फ एंड वाले 4 से पहले प्लस का साइन है, तो ये दोनों आंसर जो है वो सेम हो गए. 15 minus 12 is equal to 12 minus 15. It is also false. The answer is different. Question 5. Fill in the blanks.
dash plus 0 is equal to 0 plus 18, so it means 18 is missing, answer is 18. 6 multiplied by 9 is equal to 9 multiplied by 6. 5 multiplied by bracket 7 plus 2 is equal to 5 multiplied by 7 plus 5 multiplied by 2. 5 को ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ है 7 और 2, इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया तो आंसर इन दोनों का सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का. फोर्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. हमें कैसे पता चला कि 5 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाली ब्रैकेट में 5 और 4 दो वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब है 4 तो वही है जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे था, लेकिन 5 इज़ डिफरेंट, सो 5 वैल्यू इज देयर. 6 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 6, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा. 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5. 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12. 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर विल बी 0. 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0. Okay, hope so. Okay, next question. 6. Find the value of 542 multiplied by 92 plus 8 multiplied by 542. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इन दोनों को इजी वे ये है कि आप 542 जो है वो कॉमन लेके भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं. दोनों तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. जब कॉमन लेना है तो 542 को कॉमन लेके तो 90 प्लस 8 को प्लस करना और फिर 542 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 54,200. द नेक्स्ट क्वेश्चन है 365 मल्टीप्लाइड बाय 99 प्लस 365 तो इन दोनों में से हमें 365 हमने कॉमन ले लेना है. तो 99 प्लस 1, 365 अगर कॉमन आ जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे और 99 को प्लस किया 1 से 100 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36500. और वैसे भी अगर स्टूडेंट दूसरी तरह करना चाहे कि 99 को 365 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को प्लस किया तो तब भी सेम आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाइड बाय 612 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 612. अब यहाँ पे इसके भी दो मेथड है कि एक जो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया और इनको प्लस किया तो आंसर आ गया. दूसरा मेथड ये है कि 612 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 आ जाएगा 10. 10 को जब 612 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6120 यानी 1 0 ऐड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 फॉल्स. दोनों को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको जब दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आती. दैट्स द रीज़न दैट इट इज़ फॉल्स. 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 6. इट इज़ ट्रू. बोथ इस केस में दोनों साइड बोथ साइड्स पे आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए थे. दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. पता भी चल रहा है कि ये गलत हो जाएगा. उसके बाद आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 5. इट्स रॉन्ग. 0 आना चाहिए था, सो इट इज़ फॉल्स. 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0. इट्स ट्रू, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है. 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1. इट इज़ ट्रू. 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि डिवाइड आपका डिवाइज़र भी चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपका आंसर सेम नहीं आएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2. Select the correct answer from the given option. The answer is written here. So, question number 1, answer B. Question number 2, answer A. Question number 3, answer B. Question number 4, answer A. Question number 5, answer B. Question number 6, answer B.
Chapter number 3, Factors and Multiples. Exercise 3A, question number 1, fill in the blanks. 135, part 1, 135 is equal to 12 multiplied by dash plus dash. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फिलिंग ब्लैंक्स में आएगा 11 और सेकंड फिलिंग ब्लैंक्स में आएगा 3. तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड को, तो हमारा 135 आंसर आ जाएगा. पार्ट 2, 219, तो ब्रैकेट में है 23 मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस डैश. तो फर्स्ट ब्रैकेट में डैश में आ जाएगा 9 और सेकंड वाली में 12 होगा. 9 मल्टीप्लाइड बाय 23 और उसमें 12 को प्लस करेंगे तो हमारा 219 आ जाएगा. 487, 37 मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस डैश. तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 6, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. Question number 2, state whether the following are true or false. Every natural number is a multiple of itself. True. 1 is a factor of every natural number. True. Multiple of 12 are all multiple of 9. False. ठीक है, ये multiple of 9 false हो गया. Multiple of 8 are all multiples of both 2 and 4. True. Write the first 5 multiples of 17. अब सोल्यूशन में मैंने थोड़ा सा ये किया है कि इनको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है. अगर आप नहीं भी मल्टीप्लाई कर साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हो, डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो भी वैलिड हो. तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 73 ज़ा 51, 74 ज़ा 68, 75 ज़ा 85. So first 5 multiples of 17 are 17, 34, 51, 68 and 85. It is answer. 23 को भी इसी तरह हमने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया. सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर 23, 46, 69, 92, 158. 47 को भी हमने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया. सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 47 आर 47, 94, 141, 188, 235. Question number 4, list the multiples of 7 between 10 and 40. अब हमने 7 के मल्टीपल्स लिए 40 तक, तो हमारे पास 35 तक कर दे, क्योंकि 7 6 ज़ा 42 ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें ये नहीं लेने. और 7 1 ज़ा 7 जो है वो 10 से लेस देन हो जाता है, तो इसलिए हमने 7 को भी नहीं लेना. तो मल्टीपल कौन कौन से आ जाएंगे. Hence, the multiple of 7 between 10 and 40 are 14, 21, 28 and 35. List the multiple of 11 less than 50. 11 1s are 11 2s, 11 3 और 11 4 हमने फाइंड आउट किया. तो इनमें से जो 50 से लेस देन, तो ये सारे 50 से लेस देन है. और 11 5s are 55, वो 55 50 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 11 5 नहीं लिया. सो द आंसर इज 11, 22, 33 and 44. Question 6, list all the numbers less than 50 which are multiple of both 2 and 3. Both 2 and 3 are the factor of 6, so multiple of 6 are required multiple. So common multiple of 2 and 3 which are less than 50 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48. Without actual division, state whether each of the following numbers is divisible by 2, 3, 5 and 11. तो 105 जो है that is divisible by 3 and 5. कैसे 3 पे हो गया, क्योंकि इन तीनों को प्लस करें 1 0 और 5 को, तो ये 6 आ जाता है. 6 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो इसलिए हमने ये डिविजिबल बाय 3 हो गया. और लास्ट पे 5 या 0 होगा तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा, तो इसलिए 3 और 5 जो सा है ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं. 997, अब ये ना तो ये 2 पे डिविजिबल है, क्योंकि 2 के लिए ज़रूरी है कि लास्ट पे 0 2 4 6 8 आए, और इसलिए नहीं हो सकता. और 3 के लिए यह है कि इन तीनों को प्लस करें तो ऐसा आंसर आए जो 3 पे डिवाइड हो रहा, तो वो भी नहीं हो रहा. 5 के लिए है कि लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा. और 11 के ऊपर भी ये डिविजिबल नहीं है, ये किसी पे भी डिविजिबल नहीं है. 2091, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 पे डिविजिबल है. कैसे? 9 + 1 = 10, 10 + 2 =
12 और 0 को करेंगे तो 12 आ गया ना इनका, तो 12 से ये 3 के ऊपर डिविजिबल बाय है 2 पे, इसलिए 12 तो 2 पे भी डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 2 पे इसलिए डिविजिबल नहीं है कि इसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, सो इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय 3। 2, 7, 3, 0, अब ये 0 आ गया, ये 5 पे डिविजिबल भी है, 0 आ गया, ये 2 पे भी डिविजिबल है। अब बाकी बचा 3 पे देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो 0 + 3 3 एंड 3 + 7 10, 10 + 2 = 12, तो ये 3 पे भी डिविजिबल है। 1, 3, 3, 1 डिविजिबल बाय 11, ये तो पहले बात है कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, ये 5 पे डिविजिबल नहीं है, और अब 3 के लिए प्लस करके देख लेते हैं, या जगह 4 और 4 8, 8 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो 8 पे भी 5 पे भी 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, और बाकी बचा 11 पे हम करके देखते हैं, तो ये 11 पे डिवाइड हो जाता है। गिव द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, 21 बिटवीन 100 एंड 200, तो 105, 126, 147, 168 एंड 189। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ये है 27 बिटवीन 150 एंड 250, तो इसके सेंटर में आ जाएगा 162, 189, 216 एंड 243। 37 बिटवीन 100 एंड 250, तो आ जाएगा 111, 148, 185 एंड 222। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो डिविजिबल बाय 11 है, यानी 1661, यानी 1661 डिविजिबल है 11 पे। 54,240 it is not divisible by 11. 15,350 it is also not divisible by 11. यानी 1,03,081 it is divisible by 11. 38,454 that is not divisible by 11. आगे आ जाता है 7,69,494 divisible by 11. Give an example of number which is divisible by 7 but not 14. यानी ऐसा हमने नंबर लेना है कि जो 14 पे तो डिवाइड ना हो रहा हो, लेकिन 7 पे डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ 21. Divisible by 5 but not 15, that is 20. Divisible by 3 but not 6, that is 9. इसको आप बेटा करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करके भी. टेस्ट whether 6 is divisor of 506. yes, डिवाइजर है, इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है. 306, yes, it is also divisor of 306. 4,128, yes, it is the divisor of this number also. 4,510, no, it is not a divisor of this one, because there is some remainder. Test whether 9 is divisor of 207. yes, it is divide. ठीक है, क्योंकि 9 के डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि वो 3 वाले भी आ रहा हो और 9 भी हो रहा हो, यानी आप इनको प्लस करें तो आंसर जो है जो आएगा वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा होगा, तो वही इसका मतलब है कि 3 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 9 पे भी डिवाइड हो रहा है. इसी तरह 44,050, yes, it is divisible. इन दोनों को आप प्लस करके देख लें तो ये 4 और 5 को तो 9 आ जाता है, तो इसका मतलब 9 पे डिवाइड हो रहा है. 27, yes, ठीक है. 9, 18 जो है वो 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये डिविजिबल है. 3655, नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल. अब 5 को प्लस करें, 10 में 6 प्लस किया, 16 में 3 प्लस किया, 16 में 3 प्लस करें तो 19 के ऊपर 9 डिवाइड नहीं होता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, exercise 2. Select the correct answer from the given option. The answer is written here. So question number 1 answer B, question number 2 answer A, question number 3 answer B, question number 4 answer A, question number 5 answer B, question number 6 answer B.
Multiple choice question 3. Select the correct answer of the following options. Only answers are written here. Part 1 answer is C, part 2 answer is A, part 3 answer is B, part 4 answer is D, part 5 answer is C, part 6 answer is D. I think so. Slide are missing. Exercise 3A, 3B. Question number 1 is there, and then multiple choice question is there. Now question number 2. So you just adjust it, beta. Question number 2. Classify the following into odd and even number. 47 is odd number, जो कि किसी पे भी डिवाइड नहीं होता. 123 is odd number. 458 even number. 2732 is even number. 15280 is even number. 27001 is odd number. अब ये इवन और ओड का कैसे पता चला? तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू को देखेंगे. जैसे कि पहले में 7 है ओड नंबर, दूसरे में 3 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है. तो हमें इवन नंबर जो हैं वो सिर्फ 0, 2 और 8 वाले ही हम कंसिडर करेंगे. सो जो ये इवन है और बाकी जो हैं वो ऑड नंबर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75. तो 50 और 75 के प्राइम नंबर हो जाएंगे 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73. Question number 4. Find the pair of twin primes between 50 and 80. अब ट्विन प्राइम ये होता है कि एक प्राइम नंबर के बाद फ़ौरन दूसरा प्राइम नंबर जो आ जाए. जैसे 59 के बाद फ़ौरन जो है वो 61 प्राइम नंबर आ जाता है. इसी तरह 71 और 73 ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं. Question number 5. Express each of the following odd number as the sum of 3 odd prime numbers. ठीक है, 19 हो जाएगा. तो इसको हमने इस तरह डिवाइड करना है कि ये 3 ऑड नंबर में और वो भी प्राइम नंबर, ऑड नंबर भी हो, प्राइम नंबर भी हो. तो 19 को हम करेंगे 3 + 5 + 11, यानी ये तीनों ऑड नंबर भी हैं और तीनों प्राइम नंबर भी हैं, किसी और पे भी डिवाइड नहीं होते. 35, 5 + 11 + 19, 91, 23 + 31 + 37. Question number 6. Write each of the following numbers as the sum of twin primes. 24, 11 + 13, 120, 59 + 61, 144, 71 + 73. इसमें भी आपको पता चल गया ना, ट्विन प्राइम्स हमने लिखने हैं सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स, जो एक के बाद दूसरा जो फौरी तौर पे दूसरा आ जाएगा उसको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं. Question number 7. Write 5 consecutive composite number below 30. कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो अपने अलावा भी किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं, उसको कॉम्पोजिट नंबर है. और कंसेक्टिव कौन से होते हैं? जो उसके फ़ौरन बाद जो नंबर आ रहा है उसके फ़ौरन बाद जो नंबर. अब जैसे 24 है, 4 के बाद फ़ौरन 25, 25, 5 5 है 25. इसी उसके फ़ौरन बाद उन सब 26 आ रहा है, उसके फ़ौरन बाद 27 आ रहा है, उसके फ़ौरन बाद 28 आ रहा है, और उसके बाद तो 30 आ जाता है. तो 30 से बिलो हमने लिखना है. सो 24, 25, 26, 27, 28 इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. राइट 7 कंसेक्टिव नंबर्स जस्ट बिलो 100. हमने 7 कंसेक्टिव नंबर्स लिखने हैं. 90, 91, 92, 93, 94, 96 एंड 97. ये हमने कंसेक्टिव नंबर्स लिख लिए. अब उसके बाद इसमें आ जाता है फाइंड एन ओड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन. 81, यानी ऐसा ऑड नंबर है ये कि इसकी रिफ्लेक्शन जो सी है वो इवन नंबर हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन, यानी ऐसे हमें इवन नंबर लेने जिनकी रिफ्लेक्शन भी इवन ही होगी. तो 8 को आप जैसे मर्जी कर ले वो 8 ही रहेगा. 88 को आगे पीछे कर लें तो भी ये 88 ही रहेगा. ठीक है ना, आप इधर कर लें उधर कर लें तो ये 88 ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 11. देयर इज़ एन ओड नंबर
द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इट्स इवन, यानी एक ऐसा ऑड नंबर हो कि जिसकी डबल रिफ्लेक्शन, उसको डबल 2 टाइम हम उसको अगर उनकी इंटरचेंज कर दें उनकी प्लेस, तो वो फिर भी इवन रहेगा। एंड एन इवन नंबर, और एक ऐसा इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इन ऑड नंबर, जिसकी रिफ्लेक्शन इस इवन नंबर को ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगी। फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स इज 9 and 6, 9 और 6 जो सी है, यही दो नंबर हैं जो इन दोनों को टर्न कर देते हैं इवन में और ऑड में। आप समझ सकते हैं ना रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है इनके इंटरचेंज कर दें, 96 आ जाएगा या 69 आप कर लें, 96 हो जाएगा तो ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 69 हो जाएगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना है अपने बेटे इस चैनल को, और आई होप सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। बस थोड़ी सी ये हुआ है कि हमारे MCQs जो हैं वो सेकेंड स्लाइड पे शिफ्ट हो गए थे, ये थोड़ी सी ये कंप्यूटर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और आपने ये ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम लगे तो उसे दोबारा से आपने उस वीडियो को देख लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।